معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک جنگل کی دنیا ایپیسوڈ نمبر 6۔ پاسکل نے ایک آدمی کے پیٹ میں سر کی ٹکر ماری جس سے وہ دوہرا ہو گیا تھا۔ دوسرے نے پاسکل کو مارنے کی کوشش کی تھی جس سے پاسکل ایک دم ایک طرف ہو گیا، جس سے وہ اپنے ہی زور سے گہری کھائی میں جا گرا۔ دوسرے آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور اس طرف کھینچنے لگا جس طرف بلیکی موجود تھا۔ عین اسی وقت مارگریٹ نے ہمت کی، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس آدمی کے سر میں مارا جس سے اس آدمی نے مجھے چھوڑ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ مارگریٹ نے بہت زور سے پتھر مارا تھا جس سے اسے دن میں بھی تارے نظر آ گئے، اور میں نے اسی وقت اسے دھکا دے دیا جس سے وہ ایک چٹان پر گرا اور پھر دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ میں نے پاسکل کی طرف دیکھا جو پہلے آدمی سے لڑ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے بھی اسے چیک کی۔ میں اسے چپک گیا اور اسے مارنے لگا۔ پھر پاسکل اور میں نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا اور پھر ہم انکل ڈیوڈ کی طرف مڑے جو ایک طرف لیٹے ہوئے تھے۔ مارگریٹ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انکل ڈیوڈ کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ ہم ان کی طرف بڑھے۔ ان کی ران سے خون نکل رہا تھا۔ پاسکل نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر ان کی ران پر باندھا۔ اب آپ کیسے ہیں؟ پاسکل نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر ہم نے انکل ڈیوڈ کو سہارا دیا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ انکل ڈیوڈ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، تاہم انہیں لیے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں بلیکی اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اس طرف نہ نکل آئے۔ ہم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جنگل اب تھوڑے فاصلے پر رہ گیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی ہم بلیکی اور اس کے ساتھیوں سے آسانی سے بچ سکتے تھے۔ انکل ڈیوڈ کے جسم سے نکلنے والا خون پتھریلی زمین پر گرتا جا رہا تھا جس سے بلیکی اور اس کے ساتھیوں کا ہم تک پہنچنا آسان ہو سکتا تھا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے کیونکہ انکل ڈیوڈ زخمی ہو گئے تھے، ورنہ پھر ہم کسی چٹان کے پیچھے چھپ بھی سکتے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ چلتے چلتے ہمیں ایک بار بلیکی کی آواز سنائی دی تو ہم ایک بار پھر ٹھٹک گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو وہ تینوں کہاں رہ گئے ہیں اور وہ ابھی تک قیدیوں کو گرفتار کیوں نہیں کر سکے۔ مجھے دائیں جانب ایک غار نظر آئی جو پہاڑیوں کے عین درمیان میں بنی ہوئی تھی، جو اس طریقے سے بنی تھی کہ صرف مخصوص جگہ پر رک کر دیکھنے پر ہی وہ نظر آتی تھی۔ اس کے سامنے متعدد بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں سنگلاخ اور گہری کھائیاں بنی تھیں جنہیں دیکھ کر جسم میں سرسرائیت پھیل جاتی۔ وہ غار ہمارے لیے فی الوقت محفوظ پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بلیکی اور اس کے کارندے ہمارے پیچھے ہی تھے۔ انکل ڈیوڈ کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، ان پر نکاہت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت چیخ کر کہا، پاسکل اس طرف غار میں گھس جاؤ۔ میں نے پاسکل سے کہا تو ہم سب اسی وقت اس غار میں گھستے چلے گئے۔ غار میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، نہ جانے وہ غار کتنی دور تک جا رہی تھی۔ تاہم اس غار میں آتے ہی پاسکل اور میں نے انکل ڈیوڈ کو ایک طرف لٹایا اور پھر غار کے دہانے پر موجود بڑی سی چٹان کو دہانے کی طرف سرکانا شروع کر دیا۔ چٹان بہت بھاری کم تھی، ہمیں بہت زور لگانا پڑ رہا تھا۔ مارگریٹ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ بالآخر ہم کافی دیر بعد اس چٹان کو غار کے دہانے پر سرکانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے غار کے دہانے پر چٹان اس انداز میں رکھی تھی کہ باہر کی روشنی تھوڑی سی آ رہی تھی۔ اس جگہ سے ہم باہر دیکھ سکتے تھے۔ پاسکل انکل ڈیوڈ کو دیکھنے لگا۔ ران پر خون نکل کر جم چکا تھا۔ ہمارے پاس ایسی چیز بھی نہ تھی کہ ہم انکل ڈیوڈ کی ران میں سے گولی نکال دیتے۔ ابھی ہمیں اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک ہم پر ایک بار پھر چونک پڑے۔ اسی وقت وہاں پر قدموں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً بلیکی اور اس کے کارندے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ میں غار کے دہانے کے قریب بیٹھا ہوا اس چھوٹی سی لکیر سے باہر دیکھ رہا تھا۔
दौड़ने की आवाज़ अब उस गार के करीब आकर रुक गई। ओहो, कहाँ जा सकते हैं वो? ब्लैकी की आवाज़ सुनाई दी। कहीं वो किसी खाई में न गिर गए हों, एक परिंदे की आवाज़ सुनाई दी। इतनी जल्दी वो कैसे खाई में गिर सकते हैं? ब्लैकी की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि उनमें से वो बूढ़ा जख्मी है। ब्लैकी साहब, उसी लम्हे ब्लैकी के दूसरे परिंदे की आवाज़ सुनाई दी। ये देखें, ये खून के धब्बे। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अंकल डेविड, पास्कल और मार्गरेट भी उसकी आवाज़ बआसानी सुन रहे थे। वो भी परेशान हो गए। मैं सोच रहा था कि अगर वो खून के धब्बों का ताक़ब करते हुए इस गार की तरफ निकल आए तो फिर हम बआसानी पकड़े जाएंगे। चंद सायतें खामोशी और परेशानी में गुजर गईं। फिर ब्लैकी की आवाज़ सुनाई दी। देखो, ये खून के धब्बे कहाँ तक जा रहे हैं। फिर चंद सायतें खामोशी में गुजर गईं। एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। ब्लैकी के परिंदे की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैकी साहब, खून के धब्बे सिर्फ यहीं तक मौजूद हैं। क्या मतलब? ब्लैकी की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मतलब है वो कि वो लोग यकीनन यहीं कहीं मौजूद हैं। उसी परिंदे की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, मगर वो यहाँ कहाँ छुप सकते हैं? ब्लैकी ने कहा। तलाश करो उन्हें। और वो सब हमारी तलाश में इधर उधर फैल गए। हम सब के चेहरों पर परेशानी के तासुरात फैल गए थे और हम सरासीमा होकर एक दूसरे को देख रहे थे। काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई। मैंने देखा कि ब्लैकी का एक परिंदा खून के धब्बों का ताक़ब करते हुए वहाँ तक आ गया था और गायराना नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैंने सबको उसके बारे में इशारे से बता दिया और उसकी नज़र अभी तक उस गार की तरफ ना पड़ी थी जिसमें हम मौजूद थे। वो चंद लम्हे वहाँ जायज़ा लेने के बाद वहाँ से चला गया। ब्लैकी साहब, उसने ब्लैकी को आवाज़ दी। हाँ, क्या है? ब्लैकी की चौंकती हुई आवाज़ आई। वो खून के धब्बे उस तरफ जा रहे हैं, उसने बताया। कहाँ तक? ब्लैकी चौंकते हुए बोला। चलो मेरे साथ। अगले ही लम्हे फिर कदमों की आवाज़ें आने लगी। वो उसी तरफ आ रहे थे। हमारे दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। ब्लैकी अब हर सूरत में हम तक पहुंच जाएगा। थोड़ी देर के बाद ब्लैकी वहाँ उसी परिंदे के साथ वहाँ आ गया और ज़मीन पर बैठकर खून के धब्बों को गौर से देखने लगा। खून के धब्बे तो यहाँ तक हैं, ब्लैकी ने कहा। सवाल ये है कि वो अब कहाँ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो उस खाई में गिर गए हैं, उसके परिंदे ने कहा। ब्लैकी ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मेरा ख्याल है कि वो हमारे यहाँ तक आने से पहले जंगल की तरफ निकल गए हैं। ब्लैकी के परिंदे ने उसकी बात का जवाब ना दिया और वो दोनों 10 मिनट तक वहाँ मौजूद रहे। फिर वहाँ से चले गए। हम अभी तक दम साधे खुद बैठे हुए थे क्योंकि हमारी थोड़ी सी हरकत या बोलने की आवाज़ उन्हें इस गार की तरफ मतवज्जा कर सकती थी। शाम हो गई थी और हम उस गार में दुबके बैठे थे। ब्लैकी और उसके साथी शाम तक वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। रात का अंधेरा फैल चुका था और रात के अंधेरे में सफ़र करना हमारे लिए दुश्वार गुजार और कठिन था क्योंकि वो सारा पहाड़ी इलाका था और कुर्बो जवार में गहरी गहरी और संगलाक चट्टानें और खाइयाँ फैली हुई थीं जिनमें अंधेरे में गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। गार में बहुत ज़्यादा तारीकी फैल चुकी थी। सर्दी भी थी जिसके बाइस हम सर्दी में ठठर भी रहे थे। हम बेसरो सामानी की हालत में थे। सर्दी दूर करने के लिए हमारे पास कोई कपड़े भी न थे। फिर ये तय पाया कि मैं और पास्कल बाहर जाकर खुश्क लकड़ियाँ और पत्थर लाते हैं ताकि हम वो जलाकर सर्दी दूर कर सके और इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ चाहिए। अंकल डेविड की तकलीफ़ कुछ कम तो हो गई मगर गोली अभी तक उनकी रान में ही थी और वो एक तरफ लेटे हुए थे। पास्कल और मैंने मिलकर गार के दहाने से पत्थर को एक तरफ हटाया और फिर गार से बाहर निकलकर पत्थर को वापस उसी अंदाज में रखा और एक तरफ बढ़ गए। बाहर सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। हम दोनों फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। हमने काफ़ी देर तक इधर उधर खुश्क लकड़ियाँ और खाने के लिए कुछ तलाश करने की कोशिश की मगर जब हमें कुछ ना मिला तो हमने फ़ैसला किया तो हमें जंगल से ही लकड़ियाँ लानी चाहिए। चुनाचा हम जंगल की तरफ पड़ गए। जंगल काफ़ी फासले पर वाक़या था जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया।
जंगल में वीरानी और घुप अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं से किसी दरिंदे के गुर्राने की आवाज़ आती तो हम दोनों सहम जाते। हमें दरिंदों की तरफ से भी खतरा था कि वो अचानक ही किसी तरफ से नमूदार होकर हम पर हमला आवर ना हो जाएं। हम दोनों फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। हमने कुछ लकड़ियां जमा की और कुछ फल तोड़कर वापस बढ़ने ही लगे थे कि यकायक हम दोनों ठठक कर रुक गए। हमारे चेहरे सर्दी में भी अर्क आलूद हो गए। हमें एक जीप की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दिमाग में फ़ौरन आया कि कहीं ब्लैकी और उसके कारिंदे हमारी तलाश में उस तरफ ना आ गए हों। सनसनाहट की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। जीप की आवाज़ करीब ही से आ रही थी। हम दोनों उस तरफ बढ़े जिस तरफ से जीप की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर आकर हमने देखा कि जंगल के दरमियान से एक पथरीली सड़क आगे जा रही थी और उसी सड़क पर ही दाईं तरफ से जीप की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। हम दोनों एक झाड़ी में दुबक गए और उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से जीप आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही हमें एक जीप नजर आई जो दरमियानी रफ्तार से जा रही थी। वो जीप ब्लैकी और उसके किसी कारिंदे की हरगिज़ नहीं थी। फिर वो कौन था जो इस जंगल में रह रहा था? मेरे दिमाग में मुख्तलिफ सवालात आने लगे। पास्कल के चेहरे पर भी उलझन के आसार थे। मेरा ख्याल है कि इस जंगल में कोई शिकारी पार्टी आई हुई है। पास्कल ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, फिर हम उनकी मदद किसी मुल्क में जा सकते हैं? बिल्कुल। पास्कल ने कहा, आओ हम उनका ठिकाना देख लें, ये किस तरफ रह रहे हैं। हम दोनों उस तरफ बढ़ गए जिस तरफ से वो जीप जा रही थी। चूँकि हम जंगल में दरमियानी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए हम जल्द ही उस जीप के करीब पहुंच गए। वो सड़क चौकोर अंदाज में बनी हुई थी, इसलिए हम फ़ौरन ही उसके सामने पहुंच गए। जीप हमारे आगे से गुजरती हुई एक तरफ घने दरख्तों की तरफ बढ़ गई, जहां गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। हम उसकी तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी दूर आकर हम एक जगह रुक गए और उस तरफ देखने लगे जिस तरफ वो जीप गई थी। जीप एक जगह रुकी हुई थी और उसकी हेडलाइट्स बंद थी। हाँ, वहाँ दो और भी कारें मौजूद थी और उनसे चंद कदम के फासले पर एक बहुत बड़ा लक्जरी का घर बना हुआ था जिसका दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ भी ना आ रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे वो घर वीरान पड़ा हो। हम दोनों चंद लम्हे शशोपंज में पड़े रहे कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि हमें अंदर मौजूद लोगों से मदद हासिल करनी चाहिए। पास्कल ने भी मेरे इस ख्याल से किया और फिर हम दोनों उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम थोड़े ही फासले पर थे कि अचानक हम दोनों ठठक कर रुक गए। उस घर का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद का साया निकलकर उस जीप की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था। वह जीप में सवार हुआ और अगले ही लम्हे जीप स्टार्ट करके वो एक तरफ बढ़ता चला गया। अंधेरे में वो साया हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई ना दिया था। चूँकि हम एक दरख्त के पीछे छुप गए थे, इसलिए वो साया हमें ना देख सका। अंदर चलें? मैंने इस्तहवाइया अंदाज में पास्कल से पूछा। पास्कल ने मेरी तरफ देखा और सर हिला दिया। हम उस लक्जरी के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचकर पास्कल ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुलता चला गया। हम दोनों अंदर आ गए। अंदर एक तरफ लकड़ी की दीवार पर निस्ब एक लकड़ी जल रही थी, जिससे अंदर काफ़ी रोशनी पैदा हो रही थी। उस लकड़ी के घर के दो कमरे थे जो खाली थे। हैरत और तजस्सुस से हम एक दूसरे को देखने लगे। दूसरे कमरे में एक बड़ी सी मेज़ पड़ी थी। दाएं जन्म दीवार पर एक बड़ा सा खंजर लटका हुआ था। खंजर देखकर मेरे वजूद में सर्द सी लहर दौड़ गई। मेरा ख्याल है कि वो आदमी अकेला ही इस घर में रहता है, पास्कल ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैंने अस्वात में सर हिला दिया। हैरत है कि वो अकेला इस वीरान और खौफनाक जंगल में कैसे रहता है। हमें वक्त ज़ाया करने की बजाय यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंकल डेविड और मार्गरेट हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने सर हिला दिया और फिर पास्कल ने दीवार पर निस्ब खंजर उतार कर जेब में डाला और हम उस मकान से निकल आए। पास्कल ने एक कार का दरवाज़ा खोला तो उसका दरवाज़ा खुलता चला गया। इत्तफाक से कार के इग्निशन में चाबी भी लगी हुई थी, जिसके घुमाते ही वो कार स्टार्ट हो गई। पास्कल ने मुझे बैठने का इशारा किया और मेरे बैठते ही उसने कार रिवर्स की और फिर अगले ही लम्हे उसका रुख
उस पहाड़ी इलाके की तरफ मोड़ दिया जिसकी गार में अंकल डेविड और मार्गरेट मौजूद थे। मैंने लकड़ियां तो वहीं फेंक दी थी, अलबत्ता फल अपने साथ ले लिए। रास्ता चूंकि दुश्वार गुजार था, ताहम पास्कल इंतहाई महारत से कार ड्राइवर कर रहा था। पहाड़ी इलाके पर पहुंचते ही पास्कल ने कार की रफ्तार हल्की कर दी। कार की हेडलाइट से अपने पहाड़ी इलाका साफ नजर आ रहा था। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं पास्कल से तवाज़न ना बिगड़ जाए और इस तरह कार किसी गहरी खाई में भी गिर सकती थी। हम जल्द ही उस गार तक पहुंच गए जहां अंकल डेविड और मार्गरेट मौजूद थे। हम दोनों ने गार के धाने से पत्थर हटाकर एक तरफ किया और अंदर दाखिल हो गए। कौन हो तुम? अंकल डेविड की घबराहट अमीज आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वो हमें देखकर खौफजदा हो गए थे। शायद वो यही समझे थे कि ब्लैकी और उसके कारिंदे वहां पहुंच गए हैं। ताहम मैंने जल्दी से कहा, अंकल हम हैं। ओहो, तुम आ गए, थैंक गॉड। अंकल डेविड ने तवील सांस लेकर कहा, मगर ये कार किसकी है? उसी लम्हे पास्कल ने एक छोटी सी टार्च रोशन कर ली जो वो उस घर से अपने साथ लिए हुए आया था। मार्गरेट भी अपने बाप के साथ बैठी थी। सर्दी में दोनों सुकड़े बैठे थे। हम दोनों उनके करीब बैठ गए और पास्कल ने सारी बात उन्हें बता दी। उनके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए और फिर पास्कल ने खंजर निकालकर अंकल डेविड की रान से गोली निकालने की कोशिश की। अगरचे गोली निकालते हुए अंकल डेविड के चेहरे पर सख्त तकलीफ के आसार उभर आए, मगर उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाला और ज़ब्त किए बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद पास्कल उनकी रान में से गोली निकालने में कामयाब हो गया। गोली निकलते ही अंकल डेविड बेसुध होकर पथरीली ज़मीन पर लेट गए और लंबे लंबे सांस लेने लगे। पास्कल ने एक रुमाल उनकी रान पर बांध दिया था। मार्गरेट अपने पापा के पास बैठ गई। पापा, अब आप कैसे हैं? मार्गरेट ने पूछा। मैं ठीक हूँ, अंकल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो पास्कल से मुखातब हुए। मेरा ख्याल है हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ब्लैकी दोबारा यहाँ ना आ जाए। अंकल डेविड की बात दुरुस्त थी, इसलिए पास्कल और मैंने अंकल डेविड को सहारा दिया और कार की पिछली नशस्त पर लिटा दिया। मार्गरेट अंकल डेविड के साथ बैठ गई थी, जबकि मैं फ्रंट सीट पर विराजमान हो गया और पास्कल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पास्कल ने कार स्टार्ट की और फिर एहतियात से वहां से निकाली और जंगल की तरफ बढ़ गए। हमें यह भी मालूम ना था कि रात के इस पहर क्या वक्त है। पास्कल ने कार की रफ्तार हल्की रखी। 20 मिनट के बाद कार जंगल की हदूद में दाखिल हो गई। अब कार जंगल के रास्ते की बजाय पुख्ता सड़क पर दौड़ रही थी। जंगल में भी खामोशी और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कार की हल्की सी आवाज़ उस गहरे सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। हम सब भी खामोश बैठे थे। कार अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उसकी रफ्तार में कमी होने लगी और थोड़ी देर के बाद वो हचकोले खाने लगी और फिर चंद लम्हों के बाद रुक गई। ये कार को क्या हो गया है? अंकल डेविड ने पूछा। मेरा ख्याल है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, पास्कल ने जवाब दिया। ओहो, अब क्या होगा? मैंने मुतफक्कर लहजे में कहा। मैं देखता हूँ, पास्कल ने कहा और फिर कार से उतरकर उसका कार का मुआयना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो मायूस होकर वापस आ गया। क्या हुआ? अंकल डेविड ने पूछा। सॉरी, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पास्कल ने कहा कि अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा। मैं भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। पास्कल को मैंने सहारा देकर अंकल डेविड को बाहर निकाला और उनको सहारा देकर चलने लगे तो अंकल डेविड ने कहा, मैं खुद ही चलूँगा। मगर आप ज़ख्मी हैं, मैंने कहना चाहा तो वह मुस्कुराए। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। फिर अंकल हमारे साथ ही पैदल चल पड़े। अगर चाह वो नहीफ व नज़ार हालत में थे, मगर वो आराम आराम से चल रहे थे। खंजर पास्कल के जो वक्त बवक्ते ज़रूरत हमारे काम आ सकता था। हमारा सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। हमारा रुख उस तरफ था जिस तरफ वो लकड़ी का घर था। वहाँ हम किसी से मदद हासिल कर सकते थे। वो लकड़ी का घर हमारे लिए महफूज पनाहगाह साबित हो सकता था, क्योंकि सर्दी अपने अरूज पर थी और हम सर्दी के मारे ठठर रहे थे। काफ़ी दूर आने के बाद अंकल डेविड ने हमें रुकने का कहा और हम रुक गए। ज़ख्मी होने की वजह से अंकल डेविड चल चल कर थक गए थे। जंगल में घुप अंधेरा फैला हुआ था।
اس لیے پاسکل نے چھوٹی سی ٹارچ روشن کر لی۔ وہ جنگل بھی بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بلند و بالا درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس سے گہری تاریکی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ پاپا، مجھے سردی لگ رہی ہے، مارگریٹ نے ٹھٹھرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم اس گھر تک پہنچنے والے ہیں، پاسکل نے بتایا، اور پھر اس نے انکل ڈیوڈ سے پوچھا، چلیں؟ ہاں چلے، انکل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر ہم انہیں سہارا دینے کے لیے ان کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اسی لمحے مارگریٹ کی حلق سے دل دوز چیخ نکل گئی۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاسکل نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ ہم سے 20 گز کے فاصلے پر ایک انسانی سایہ موجود تھا، جس کا رخ ہماری طرف ہی تھا، اور اس نے اپنے جسم پر کالے رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی تھا جو یقیناً خنجر تھا۔ پاسکل نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو اگلے ہی لمحے ہم سب گھبرا گئے۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا کوئی آدمی تھا جو خونخوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ پاسکل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس خوفناک آدمی نے پاسکل کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بدستور ہمیں ہی گھور رہا تھا۔ تم بتاتے کیوں نہیں کہ تم کون ہو؟ اس بار میں نے سنبھل کر اسے مخاطب کیا۔ تم سب کی موت، اور اس کی حلق سے خوفناک گراہٹ امیز آواز نکلی۔ کیا مطلب؟ میں گھبرا گیا۔ تم ہمیں کیوں مارو گے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میری خوراک ہو، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ جو بھی اس موت کے جزیرے پر آتا ہے وہ پھر کبھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر ہم سب پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انکل ڈیوڈ بھی ہراساں ہو کر اس طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس آدمی کے تیور اچھے نہ لگتے تھے۔ دیکھو، ہمیں جانے دو، اسی لمحے انکل ڈیوڈ نے اسے مخاطب کیا۔ ہم بہت مصیبت میں ہیں۔ اس نے چہرہ گھما کر انکل ڈیوڈ کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ پاسکل نے بھی اپنی جیب سے خنجر نکال لیا تھا۔ خنجر دیکھ کر اس خوفناک آدمی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ وہ بے دستور ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم بھی پیچھے کی طرف ہو رہے تھے، مگر انکل ڈیوڈ لڑکھڑائے نیچے گر گئے۔ وہ خوفناک آدمی انکل ڈیوڈ کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ انکل ڈیوڈ کچھ کرتے، اس خوفناک آدمی نے ہاتھ میں پکڑے کلہاڑی نما ہتھیار کو انکل ڈیوڈ کی گردن پر مارا تو اگلے ہی لمحے انکل ڈیوڈ کی حلق سے کھڑکھڑاہٹ نکلنے لگی۔ وہ اپنی گردن پکڑے ایک طرف گر گئے تھے۔ وہ منظر ہمارے لیے بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ مارگریٹ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے پاپا کو پکار رہی تھی۔ اسی لمحے پاسکل نے اس خوفناک آدمی پر حملہ کر دیا، مگر اس کا حملہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس خوفناک آدمی نے اسے اٹھا کر ایک درخت پر دے مارا۔ پاسکل ایک درخت سے ٹکرایا اور اس کی حلق سے دل خراش سی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے خنجر بھی نکل کر کہیں اندھیرے میں گر گیا۔ انکل ڈیوڈ ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہے تھے۔ میں خود حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مارگریٹ مسلسل چلا رہی تھی۔ انکل ڈیوڈ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے تھے۔ تم نے میرے پاپا کو مار دیا ہے، اسی لمحے مارگریٹ چلائی۔ وہ تیزی سے اس خوفناک آدمی کی طرف بڑھی۔ اس نے اس خوفناک آدمی پر حملہ کر دیا، مگر وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ الٹا اس خوفناک آدمی نے اسے اٹھا کر درخت کی طرف اچھال دیا، جس کے باعث اس کا حال بھی پاسکل جیسا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ خوفناک آدمی میری طرف بڑھا۔ میں اسے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں ایک جھاڑی سے الجھ کر پشت کے بل گر گیا، اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک وہ خوفناک آدمی میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا، اسی وقت اس کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ پاسکل نے اس کی پشت میں خنجر مار دیا تھا، اور وہ ڈکراتا ہوا پیچھے کی طرف مڑا اور پاسکل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی ایک دم اٹھ کھڑا ہو۔ اس خوفناک آدمی کی پشت میری جانب ہی تھی، اور اس کی پشت میں خنجر صاف گھسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی حلق سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی درندہ گرا رہا ہو۔ میں نے پاسکل کو دیکھا جو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے اس پر چھلانگ لگا دی، اور وہ خوفناک آدمی منہ کے بل جا گرا۔ اس کے گرتے ہی پاسکل اور میں اس پر پل پڑے اور اسے مارنے لگے۔ ہم نے اسے اتنا مارا کہ وہ بالآخر بے ہوش ہو گیا۔
पास्कल को सांस चढ़ गया था। उसने मुझे कहा कि तुम मार्गरेट को देखो, और मैं तेजी से मार्गरेट की तरफ बढ़ा। मार्गरेट बेसुध ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। शायद वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे हिला जुलाकर देखा। ये बेहोश हो गई है, मैंने पास्कल को बताया। पास्कल अंकल डेविड पर झुका हुआ था। चंद लम्हों बाद उसकी अफसोस भरी आवाज़ सुनाई दी, अंकल डेविड मर चुके हैं। ओहो, मैंने अपना सर थाम लिया। अंकल डेविड के मरने का मुझे बेहद अफसोस था। ऐन उसी लम्हे हमें सरसराहटों की आवाज़ें सुनाई दी। पास्कल ने उठकर उस तरफ देखा और जिस तरफ से सरसराहटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अगले ही लम्हे पास्कल के हलक से तशवीश भरी बड़बड़ाहट सुनाई दी। क्या हुआ? मैंने पास्कल से पूछा, लेकिन पास्कल ने मेरी बात का जवाब ना दिया। वो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ से सरसराहटें उभर रही थी। मैं भी पास्कल की तरफ बढ़ा और मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ पास्कल देख रहा था। मेरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि उस तरफ से कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने हाथों में आग वाली लकड़ियां पकड़ी हुई थी, जिनकी मदद से वो इसी तरफ आ रहे थे जिस तरफ हम मौजूद थे। उनकी तादाद 3 थी।